Ladies and gentlemen, I'm extremely jubilant to present you the most anticipated segment of this unforgettable event. And I'm certain that all the achievers, their parents, and everyone who is present over here is eager and curious to hear the words of wisdom from him. And definitely, he is the source of motivation for all of us. 2 decades earlier, he conceived a dream to provide progressive and innovative learning platform. क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया. दोस्तों, the journey started with just handful of students in a small classroom. क्लासरूम भले ही छोटा था, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था. And in this contemporary era, Made Easy and Nextize does not require any sort of introduction today, and they are counted amongst the most trusted name in the field of education. So ladies and gentlemen, may I have the privilege to invite a visionary leader, a man who strongly believes Shiksha hi dharm hai, an eminent faculty, role model to lakhs of aspirants and winner of several awards. So ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the Chairman and Managing Director of Minute, Nextize and Made Easy Group, the man himself, Mr. B. Singh. First of all, I welcome to chief guest of the event today, Sri B.S. Bassi sir, former Police Commissioner of Delhi, former member of the Union Public Service Commission, now advisor to the Made Easy Group. So sir, welcome. Welcome ma'am. I also welcome our senior mentors, guide और day one से जिंदल सर और सचदेवा सर, they have been guiding source of this institution and personally for me. So welcome sir. I welcome to Handa sir, Sasidharan sir and all the senior panelists of Made Easy and Nextize interview panel, and then I welcome all the Made Easy faculties who are the pillar of this institution. Because of them, this institution has grown up, flourished, and because of their hard work, commitment, and their dedication, all of you have achieved this great height in your ongoing journey of life. But this is one stage where you have succeeded. There are many achievements to come. Now, I congratulate to all of you, all the Engineering Services 2023 rankers, all the GATE 2024 rankers who have achieved the rank because of their hard work. तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जिनके सिलेक्शन हुए एक बार वो खड़े हो जाएं. सभी लोगों से मेरा गुजारिश है आप लोग खड़े हो जाएं. अब मैं अपने सभी इस हॉल में जितने लोग हैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इनके लिए तालियां हो जाएं. Many congratulations. Please take seat. ये आपके लिए हम सभी की तरफ से आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं और बधाइयां तो है ही. इसके बाद में मेड ईजी के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने कंटिन्यूअसली 20-25 इयर्स से लगातार कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ इस इंस्टीट्यूट को इस स्थिति में लाने के लिए जो प्रयास किया, तो उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं और उनको वेलकम करता हूं. एजुकेशन फॉर मी इज वेरी डिफरेंट. और मैं आज आप सबको कुछ मैसेज भी देना चाहूंगा, क्योंकि आप अब शिक्षा के एक स्तर को पार करके अब सामाजिक
और देश के लिए कुछ ऐसी जिम्मेदारियां लेने जा रहे हैं जहां पर आपका रोल बहुत अहम हो जाता है। और इस पूरी जर्नी में जो भी आपने सीखा है वो एक पड़ाव है, वो अंत नहीं था। बहुत कुछ सीखने के लिए अभी बाकी है। और इस दौरान आपने अपने टैलेंट को प्रूव किया, एग्जाम में सक्सेसफुल हुए, कॉम्पिटेंसी आपने दिखाई और उसी कॉम्पिटेंसी की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ। अब बारी है आपके कंपैशन की। कंपैशन से मेरा मतलब यह है कि आप सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस सरकारी हिस्सेदारी में जो आपका रोल होगा वो बड़ा डिफरेंट होगा। ये मैसेज मैं बहुत अपने अंतर्मन से दे रहा हूं कि कंपैशन का मतलब यह है कि जब आपके पास हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लोग आपसे मदद लेने आएंगे, उस समय कानून तो यह कहेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आपका उत्तरदायित्व यह होगा कि जो इकोनॉमिकली या जो सक्षम नहीं है, सबसे पहले आप उसकी मदद करें, उसके बाद जो सक्षम है उनकी बाद में मदद करें। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने जॉब में अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे तो उस समय जो सबसे पंक्ति में लास्ट में खड़ा हुआ है, आपका उत्तरदायित्व यह है कि सबसे पहले उसकी सहायता करें। तो ये कंपैशन जरूर याद रखिएगा, यह करुणा भाव आपके मन में यह होना चाहिए। इसके बाद जो शिक्षा का हमने अपने जीवन में महत्व समझा है, उसके कुछ अंश मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप ही की तरह हम लोग भी अपने छोटे गांव से आकर के, और एक समय था 1999 और 2000 में जब पोस्टर भी चिपकाने पड़ते थे और ट्यूशन पढ़ाने के लिए खुद पोस्टर चिपका के और बच्चों की इंक्वायरीज लेते थे, और ऐसे ही ये जर्नी शुरू हुई। लेकिन शिक्षा ने जीवन में वो रोल प्ले किया और वह रोल सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रह गया। मुझसे जुड़े हुए जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने हमारे एम्प्लॉई हैं, या जितने हमसे जुड़े हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंबर्स हैं, सबके जीवन में बदलाव आया। तो मुझे लगता है कि शिक्षा उस दीपक की तरह है कि पहले हम एक दीपक को जलाते हैं, फिर वही दीपक, जैसे हमने दिवाली में देखा है कि बाकी बचे हुए सारे दीपकों को जलाने में काम आता है। तो आप अब शिक्षित हो गए हैं, यू हैव अचीव्ड वन सक्सेस इन योर लाइफ, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द अदर्स एजुकेटेड। अब वो कैसे करेंगे, इसके भी रास्ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ईच वन टीच वन। ईच वन टीच वन का मतलब यह है कि अगर आप जीवन में एक संकल्प ले लें कि मुझे हर साल एक व्यक्ति को पढ़ाई में हेल्प करना है, अब आप उसको आर्थिक हेल्प कर पाएं या पढ़ा करके हेल्प कर पाएं या गाइडेंस दे करके हेल्प कर पाएं, ये आपके ऊपर है। तो ईच वन टीच वन का कॉन्सेप्ट रखिए कि जब भी आपको मौका मिले तो कम से कम साल में एक ऐसे स्टूडेंट को जरूर हेल्प करिए जो शायद स्वयं पढ़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन आपके गाइडेंस से वो सफल हो सकता है। दूसरा मैसेज मैं आपको ये देना चाहूंगा कि जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, हम देख रहे हैं, पेड़ पौधों का महत्व तो हमारे जीवन में क्या है ये हम जानते हैं, और आने वाले पीढ़ियों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। तो ईच वन प्लांट वन, ईच वन प्लांट वन का मैसेज मेरा यह है कि जब भी आपका कोई स्पेशल डे हो, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर आगे सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, आपके बच्चों के बर्थडे आएंगे, तो उन स्पेशल डेज में आप एक पौधा लगा करके अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करिए। और वो पौधा अगर आपको नहीं लगा सकते पार्क में, या ऐसा लगता है आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप गमले में लगा दीजिए। गमले में 2 साल 3 साल उसको ग्रो करिए और बाद में किसी पार्क में या रोड के किनारे लगा करके उसको संकल्प कर दीजिए। और उस पौधे को ग्रो करने के लिए उसके लिए रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसके पोषण की रिक्वायरमेंट है, वो भी इंश्योर करिए और 5 से 7 साल उसका केयर करिए। वो पौधा एक दिन पेड़ बनेगा, पेड़ फल भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, और आप सबको आने वाली पीढ़ियों के लिए वो वरदान साबित होगा। तो ईच वन प्लांट वन, ये मेरा आपके लिए
मैसेज है कि आप इसको भी फॉलो करिए। एंड नाउ जो भी आपने अभी अचीवमेंट हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें दिन रात आपने पढ़ाई की है, और वो दिन रात पढ़ाई करने का नतीजा है कि आप यहां तक पहुंचे हैं। अब आप इंजीनियर बाय डिग्री नहीं हैं, अब आप इंजीनियर बाय नॉलेज हैं। हम लोग मेडीजी में यही संकल्प लेकर के काम करते हैं कि यहां पर हम इंजीनियर्स बाय नॉलेज बनाएं। आप इंजीनियर्स बाय डिग्री तो थे ही पहले, अब उस नॉलेज को कैसे आप और आगे लेकर के उसको बड़ा रूप दे सकते हैं, इस पर काम करना है। हम लोगों ने देखा अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है 2023 का, और उस रिजल्ट में 70% के आसपास इंजीनियर्स हैं, रैंक 1 से लेकर के और अंतिम रैंक के बीच में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। रैंक 1 भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो इंजीनियर्स आर वर्सेटाइल। इस बात को मन में विश्वास में ले आइए कि जो भी कार्य आप करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सक्षम हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिए कि इंजीनियर्स आर मोस्ट वर्सेटाइल एंड वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, और आपकी अप्रोच बहुत एनालिटिकल होती है, और आप एक क्रीम ऑफ इंजीनियर्स हैं। आप एक सामान्य इंजीनियर अब नहीं रहे, आप ऑलरेडी क्रीम कैटेगरी में आ चुके हैं, फिल्टर होकर के पहुंचे हैं। तो अभी अपनी जर्नी को रोकिए मत, सक्सेस स्टेप बाय स्टेप आती है। इंजीनियरिंग सर्विस या गेट में सिलेक्शन एक मिड लैंडिंग की तरह है। आखिरी मंजिल तक जाने के लिए बीच में कई मंजिलें आएंगी, तो वही एक ये मंजिल है, अभी आपको और आगे बढ़ना है। और सिविल सर्विसेज की सिलेक्शन के बाद भी मंजिल खत्म नहीं होती, फिर समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स और लगते हैं। तो जीवन इसी ग्रोथ का नाम है। नेल्सन मंडेला की वो 2 पंक्तियां अगर आपको याद हो, आपने सुनी होंगी कि अगर किसी भी राष्ट्र को बर्बाद करना है तो वहां एटम बम और मिसाइल गिराने की जरूरत ही नहीं है, बस वहां पर शिक्षा का स्तर खराब कर दो, देश बर्बाद हो जाएगा। तो अगर हम उसी पंक्तियों को ध्यान में रख करके उसका अपोजिट इंटरप्रिटेशन करें, तो इसका मतलब अगर हमें किसी राष्ट्र को बनाना है तो उस राष्ट्र में लोगों को शिक्षित करना होगा, शिक्षा का स्तर सही करना होगा, और मन से, भाव से हमें पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाना होगा। मैं बहुत ऑनेस्टी से यह बात कह रहा हूं कि नेक्स्ट आईएएस, मेडीजी और मैनेट अब मेडीजी नीट आईआईटी का एक सेगमेंट है। यहां पर हमारे जो भाव हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो बड़े अंतरात्मा से कह रहा हूं कि हमारा 100% कमिटमेंट होता है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दे पाएं, और साथ ही आपके जीवन में जो जरूरी है और जो अच्छा है वही आपको सजेस्ट करें। आपका ये नेक्स्ट आईएएस हो या मेडीजी, ये आपका घर है। और मेडीजी अगर आपका घर है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज देता हूं, आज फिर दे रहा हूं कि एक घर आपका वो है जहां आप पले बढ़े हैं, और एक आपका घर ये है जो जीवन भर आपका रहेगा। तो ये हमेशा नेक्स्ट आईएएस आपका सेकेंड होम रहेगा, मेडीजी आपका सेकेंड होम रहेगा। कभी भी आपको लगे कि आपको मेडीजी से कोई हेल्प की जरूरत है, या अब आगे यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, नेक्स्ट आईएएस की किसी हेल्प की जरूरत है, तो हेजिटेट नहीं करना है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि हेजिटेट नहीं करना है, तो ये आपको हक दे रहा हूं कि आप अपने हक से नेक्स्ट आईएएस या मेडीजी में आकर के आगे की तैयारी करने के लिए हमसे हेल्प लीजिए, और हम पूरे मन से और पूरी मेहनत से आपको हेल्प करेंगे कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप भी अचीव कर पाए और आगे की मंजिल भी पा पाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। छोटे में हम लोग और आप लोग लगभग एक ही जीवन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। मुझे आज भी वो याद है, 1992-93 का समय था, 94 का पीरियड था, जब मैं 12th के बाद तैयारी कर रहा था। तो आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से लोगों से मदद लेनी पड़ती थी, अपने रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ती थी। तो उनका मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी, कब मिलेंगे, कब कैसे सहायता मिलेगी, और रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। ये जीवन में ऐसा होता है, आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा होगा। एक समय था जब आप उनसे अपॉइंटमेंट लेने जाते थे, मिलने जाते थे, तो लोग बोलते थे आज नहीं कल आना, रिश्तेदार बोलते थे कि अभी नहीं बाद में मिलेंगे। लेकिन समय बदलने के बाद
परिस्थितियां बदलती हैं और वो बदलती हैं आपकी मेहनत से। तो दो पंक्तियां आपके लिए कह रहा हूं, वो आपके लिए हैं। ठुकराया था कभी जिन्होंने तुमको तुम्हारा वक्त देखकर, ठुकराया था कभी जिन्होंने तुमको तुम्हारा वक्त देखकर, अब तुम मेहनत कर ऐसा वक्त लाओ उनको मिलना पड़े तुमसे तुम्हारा वक्त लेकर। तो ये जो वक्त बदलने की बात है ना, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। वन स्टेज यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड बट देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो। अब आपको कंटिन्यू रखना है, यहां रुकना नहीं है। मयंक मित्तल जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के टॉपर थे और उनको रेलवे मिल गया, इसी फेलिसिटेशन सेरेमनी में मयंक मित्तल के पिताजी माताजी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि अब इसको रेलवे मिल गया है, अब ये रेलवे में जाएगा। तो मैंने कहा रेलवे तो एक पड़ाव है, अभी ज्वाइनिंग में टाइम है, आप तैयारी क्यों नहीं कराते? तो उनके माता पिता का ये कहना था कि अब ये पढ़ चुका, बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा है। मयंक भी बोलता था कि सर मैंने पढ़ लिया। तो मैंने कहा कि ज्वाइनिंग अभी 1 साल लगेगा, तुम और पढ़ लो। और उनको नेक्स्ट आईएएस में हमने स्पॉन्सर किया और उस स्पॉन्सरशिप के दौरान पहले अटेम्प्ट में वो आईपीएस बना, 127 रैंक आई। सेकंड अटेम्प्ट में उसकी रैंक आई 127। फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद 104 थी, सेकंड में 27। आईएएस बना, यूपी का रहने वाला था, यूपी कैडर मिला। और आज मयंक मित्तल हम सबके लिए प्रेरणा है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है। एक अक्षय त्रिपाठी स्टूडेंट होता था मेडीजी का, वो मैकेनिकल का टॉपर था, सिविल सर्विसेज में टॉप 10 में रैंक आई, उसको भी यूपी कैडर मिला। तो दोस्तों यहां से आप लोगों की जर्नी का एक नया पड़ाव शुरू होता है। जो लोग ये समझते हैं ना कि अब नहीं हो पाएगा, थक गए हैं, तो मुझे लगता है आप अपने कैलिबर को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, कैलिबर है। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए हम लोग पढ़ाते हैं तो वहां देखते हैं कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे ही हैं जैसे आप जैसे हैं। इनफैक्ट मैं आपका कैलिबर ज्यादा अच्छा देखता हूं, इसलिए रुकना नहीं है। रही बात सपोर्ट की, रही बात गाइडेंस की, तो उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग करेंगे। अब इसके बाद जो मैं आपको बातें जो बोलने वाला हूं वो इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मेडीजी में हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की कोशिश की कि हम अच्छे सहयोग करें। आप लोगों का हो सकता है गेट क्लियर हो गया, अभी आईएएस में कुछ लोग जा रहे होंगे, जिनका आईएएस क्लियर हो गया वो सिविल सर्विस के लिए जा रहे होंगे। इस प्रोसेस के दौरान अब आपको अपने अंतरात्मा की तरह या अपने मन में आपको झांकना है, देखना है कि मेरे अंदर कमजोरियां क्या हैं। उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, उन पर होमवर्क करो। विद इन अ ईयर और 2 years यू विल बी सक्सेसफुल इन दी अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ सिविल सर्विस। मेडीजी के जो टीचर्स हैं यहां पर मैं 20 साल से देख रहा हूं, 20 से 25 साल हो गए। उनके जो कमिटमेंट है, नॉलेज है और उनका जो डेडिकेशन है ये अनपैरेलल्ड है। ये संस्थान सिर्फ मेरे हार्डवर्क या सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं बना है, मुझसे ज्यादा मेहनत की है यहां के टीचर्स ने। उनके डेडिकेशन को देख करके हम सब प्रभावित हैं और सभी टीचर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी वजह से ये संस्थान इस स्टेज तक पहुंचा है। हमारे जो मार्गदर्शक, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, जिंदल सर, सचदेवा सर, शशिधरन सर एंड देन हांडा सर, बस्सी सर, इन सब के जो एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ हैं, उनके जो सिविल सेवा में एक्सपीरियंसेस रहे या जो टीचिंग में उनके एक्सपीरियंसेस रहे, उनसे भी हम लोग आज भी सीख रहे हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हमें हमेशा हम्बल्ड होना होता है जीवन में। हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, लेकिन जब भी मौका मिले अपने से और अधिक गुणवान या एक्सपीरियंस लोग मिल जाएं तो उनसे सीखने की भावना और लालसा हमेशा जीवन में रहनी चाहिए। आज भी मेरे अंदर वो भावना है और वो लालसा है कि मैं क्या और सीख सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने सीनियर से ही सीखते हैं, कई बार आप लोगों से भी सीखते हैं, जूनियर से,
स्टूडेंट्स के कमिटमेंट को, उनके बात करने के तरीके से, उनके व्यवहार से हम लोग और भी कई चीजें सीखते हैं। तो जीवन में ये चीज भी मायने रखती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि देयर शुड बी ऑलवेज willingness to learn from the teachers, from the seniors, and there should be always approach to deliver to the juniors. उनको भी आपको सिखाना होता है। So with all these words which I have spoken today, I would like to say कि चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, फिर उसी हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है। इट मीन्स योर सक्सेस इज नॉट कंप्लीट, इट इज जस्ट वन सक्सेस। कंसिडरिंग दिस सक्सेस नाउ वर्क फॉर द नेक्स्ट अचीवमेंट। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू Thank you so much, sir. Can I request you to please be on stage with us? We would like to welcome our chief guest amongst us. मैं जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री B.S. बस्सी सर, IPS retired, former Commissioner of Police Delhi, former honorable member of UPSC। तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत होना चाहिए मंच पर। Chief Advisor to Next IAS and Made Easy Group, can I also request Jyoti Singh ma'am to please join us on stage, and ma'am, can I also request to please join us on stage for this very special moment। इस सफर में आपने सर का भी साथ दिया है, मेड इजी ग्रुप का साथ दिया है और हर पल हमारे साथ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे चीफ गेस्ट श्री B.S. बस्सी सर। I would also request Mrs. Bassi ma'am to please join us on stage. It will be an absolute delight for us to have you on stage, ma'am. Thank you so much. You could take out your time. आप अपना कीमती समय निकाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. And once again, a very warm welcome to you. मेड इजी ग्रुप जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2001 में सिर्फ 7 बच्चों के साथ, आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो चुका है और आए दिन हम सिर्फ सफलता की सीढ़ियों पर चलते जा रहे हैं। मानवी, इसमें एक लाइन कहना चाहूंगा। आपने कहा वी जस्ट स्टार्टेड 7 स्टूडेंट्स, बस 2 पंक्तियां हैं। अकेला चला था मैं, अकेला चला था मैं, आज पूरा काफिला मेरे साथ है। बिल्कुल है। हालातों से लोहा लेने वाले, जरूर तुझ में कुछ तो बात है, जरूर तुझ में कुछ तो बात है। क्या बात है। एंड दिस लाइन्स वर फॉर बी सिंह सर, जो शुरुआत उन्होंने की थी, और आज हम देखते हैं वो परिवार इतना बड़ा हो चुका है। इनफैक्ट हमें अच्छा लगता है, हम हर साल सीट्स बढ़ाते हैं 3-4 बार, फिर भी जो है कुछ लोग खड़े रह जाते हैं क्योंकि जगह जो है इतनी भर जाती है एंड दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ प्राइड कि हमने कितना कुछ अचीव करा है। बट एज बी सिंह सर मेंशन, स्काई इज द लिमिट फॉर अस। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई आपका और अपना हौसला देखकर। ये जो हौसला है ना, एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करता है और इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेटली मानवी, जो एग्जाम क्रैक होते हैं, डेफिनेटली सब्जेक्ट्स, इक्वेशन, डिराइवेशन एक तरफ है, लेकिन जो जिद है, जो हौसला है। और स्पीच के दौरान बी सिंह सर ने 2-3 चीजें कही इंजीनियर्स के लिए कि कल तक आप इंजीनियर्स थे, आज ऑफिसर्स बन चुके हो। एक दिया काफी दियों को जला सकता है। और आप भी संकल्प लीजिए, एवरीवन, ईच वन, टीच वन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। कहते हैं खुदा ने कायनात बनाई, खुदा ने ये कायनात बनाई, बाकी सब चीजें इंजीनियर्स ने।
बिल्कुल. And engineering services examination is the most toughest and prestigious examination for engineers in India. और बीटेक के बाद हर एक इंजीनियर का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि एक दिन मैं भी एक आईएएस ऑफिसर बनूं. और देवियर सजनों, this year proudly I can say that made easy students have dominated ESCA examination by securing all India rank 1 in all the 4 streams. वाओ, एक बार जोरदार तालियां इस मोमेंट के लिए, इस अचीवमेंट के लिए. और यही नहीं, 4 streams, 4 toppers, and believe me ladies and gentlemen, all 4 are made easy students. और इस मंच से गर्व के साथ एक और बात कहना चाहता हूं. I want everyone's attention. इस मंच से गर्व के साथ एक और बात कहना चाहता हूं. Made Easy is the only institute. Made Easy is the only institute which has produced all the toppers for the consecutive 13 times. And ladies and gentlemen, ये एक record है. Ma'am, thank you very much for that support. So ladies and gentlemen, please tighten your seat belts as we are going to start with the felicitation ceremony of ESC 23 rankers. Thank you so much for setting the context. तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बीएस बसी सर को, बी सिंह सर को, ज्योति सिंह मैम को, and Dr. U.C. Jindal. Can I request all 4 of you to please join us on stage for Group 1 ESC All India Rank 1 and GATE All India Rank 1. So ladies and gentlemen, let's start the felicitation ceremony. Thank you. With this, I would like to thank Jyoti ma'am for joining us on stage, and I would also like to thank U.C. Jindal sir. But I would request B. Singh sir to please remain on stage, and I would also like to invite Basi sir. Can I also request? Oh, I am sure you will join us back, and I would also request
आरसी सचदेवा सर टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। मैं दरख्वास्त करूंगी आरसी सचदेवा सर से कि वो हमारे अगले टॉपर्स की फेलिसिटेशन सेरेमनी में हमारा साथ दे मंच पर। और इसी के साथ साथ मी सिंह सर, एक अगर आप अभी सबसे पहले मंच पर आए, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। एक अगर आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं और इतने बच्चों की ज़िंदगी में आप रोशनी भर रहे हैं, एक चीज़ जो आपको यहाँ तक लेकर आई है, एक रूट ऑफ डिसिप्लिन आपका क्या रहा है इतने सालों के अंदर, कि आपको लगता है कि अगर हम सब ये डिसिप्लिन वाली चीज़ फॉलो करें तो हम सब प्रगति के पथ पर चल सकते हैं? एक लाइन में बोल दूं? एक लाइन में बोलूंगा खाली, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। Thank you very much, sir. And also I request Shailendra Handa sir, please join us on stage.
So I request Jyoti Singh ma'am, Dr. Arvind Singh, MK Singh sir. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। If I can also request B. Singh sir to join us back, but if in case he wants to be there for some time, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी सर को, अगर आप कुछ देर के लिए अपनी सीट पर बैठना चाहते हैं तो। टॉपर्स की पसंद होती है और सर भी रहेंगे तो मंच में वो एनर्जी बनी रहती है। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेड इजी बस नाम मेड इजी है। मेड इजी का जैसे नाम है मेड इजी ना, वो हर चीज़ को सिंपल बना भी देता है। जैसे हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो फाइनेंशियली उतने वेल ऑफ नहीं होंगे, उसके लिए भी मेड इजी ने और इवन नेक्स्ट IAS ने नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट एक ऐसा प्रोविजन रखा है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप एग्जाम क्वालिफाई करिए, मेड इजी आपको कम से कम पैसे में पढ़ाएगा, फ्री में पढ़ाएगा। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे मेड इजी में नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट में 2017 में 100% स्कॉलरशिप मिली थी। तो अभी काफी टाइम हो गया, मेरी 10वीं रैंक है, बट हाँ मुझे ये लगता है कि आप कभी भी मेहनत करें, देर सवेर सफलता मिलती ही है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, बस लगे रहिए, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे मेडीजी और नेक्स्ट IAS की तरफ से 2 विशेष स्कीम्स चलती हैं। पहली तो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो इन्होंने बात की, उसमें 100%, 75%, 50% इस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, वो एक आपके टैलेंट पर है। लेकिन जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, अगर वो सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विस या गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। आई गिव 100% स्पॉन्सरशिप फॉर ऑल दो चिल्ड्रन। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट IAS में और ADG में पढ़ रहे हैं जिनको 100% स्पॉन्सरशिप मिली है, और ये नंबर 200 से ज्यादा है। तो आप सबके भी नॉलेज में मैंने इसलिए ये बात लाई कि कभी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आपसे संपर्क में आएंगे जो पढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, लेकिन उनके माता पिता नहीं हैं, तो उनके लिए हम लोग उनके गार्जियन बनने का गौरव प्राप्त करना चाहते हैं, एंड वी आर ऑलवेज ईगर टू टीच देम। दूसरा एक छोटा सा मैसेज मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि ये अवार्ड सेरेमनी नहीं है जो आज आप यहां पर आए हैं, ये फेलिसिटेशन सेरेमनी है जिसमें जो भी हम आपको चीजें दे रहे हैं इनमें हमारी भावनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे जीवन के लिए। तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर अवार्ड सेरेमनी कब होगी, तो ये अवार्ड सेरेमनी नहीं है, ये फेलिसिटेशन है, ये आपके लिए हमारे सब गुरुजनों की तरफ से आशीर्वाद है।
तो इसको इस तरह से लेके चलना है कि ये जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उसके लिए ये एक प्रेरणा है। थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं सबकी अटेंशन यहाँ लेना चाहूँगी, स्पेशली बी सिंह सर आपकी और मैम की, कि अभी जैसे कि आपने बोला यहाँ पे स्कीम्स चलती हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। मुझे लगता है कि भगवान जो होते हैं ना, हमने नहीं देखे हैं, पर बी सिंह सर के रूप में बहुत से बच्चों ने भगवान देखे हैं। थैंक यू। और ये बहुत बड़ी बात है सर कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको आप अपना हाथ देके उनको आगे बढ़ाते हैं। पूरी दुनिया में मुझे लगता है सिर्फ 8% लोग होते हैं और 1% of them is B Singh sir. Thank you so much, Thank sir. you very much, sir. It's an honor for us. Over to you, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot, ma'am. So next we'll be having Group 5, Gate 24, rank 6 to 10. लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। मानिए आपने सुना होगा बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, राइट? एक जादुई दरवाजा हुआ करता था और खुल जा सिम सिम बोलते हो दरवाजा खुल जाता था, और दरवाजे की उस तरफ की दुनिया बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आलीशान हुआ करती थी। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा ही एक दरवाजा यानी कि गेट हम इंजीनियर्स के लिए भी बना है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये गेट खुल जा सिम सिम बोलने से नहीं खुलता, बल्कि ये गेट कड़ी मेहनत, लगन, प्रतिष्ठा, अनुशासन से ही खुलता है। IITs, NITs, नवरत्ना एंड महारत्ना PSUs, इन सभी सुनहरी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते इसी गेट से होके गुजरते हैं। एंड प्राउडली आई कैन से दैट MADEZ students have secured highest number of selections in Gate 24, earning the rank 1 in all the 9 major streams. अगर top 10 की बात करें, 62 selections in top 10, 105 selections in top 20, 405 selections in top 100. और हमारे नेक्स्ट गेट के टॉपर्स को बुलाने से पहले प्लीज पे अटेंशन, डेविड सोजनो, अगले गेट के टॉपर्स को सम्मानित करने से पहले आप सबसे निवेदन है, कृपया अपने दिलों के गेट खोलकर इन गेट टॉपर्स का स्वागत जोरदार शोरदार तालियों से हो जाए। थैंक यू वेरी मच। So can we have the next group, Manvi? What do you? Absolutely. बट मुझे एक बात बताइए अरुण सर कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है कि हम यहाँ तक पहुँच सके, इस मुकाम तक पहुँच सके? मानवी, वो तो मुझसे बेटर है जो टॉपर्स आएंगे, उनसे एक्सपीरियंस जानते हैं, उनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि तालियों के साथ आपको मंच पर बुलाऊं, पर इससे पहले मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स, अपने डिग्निटरीज को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले SM कृष्णा सर, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप हमारे साथ मंच पर जुड़े। SM कृष्णा सर, मिस्टर प्रदीप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किरण कुमार सर, अमित कक्कड़ सर, गुलाम झा सर, आप सभी से कि आप प्लीज मंच पर आए और फेलिसिटेशन सेरेमनी को आगे बढ़ाएं हमारे अगले ग्रुप के साथ, ग्रुप 5 के साथ।
के साथ साथ बढ़ते हैं अपने अगले ग्रुप की ओर। मैं दरख्वास्त करूंगी एक बार दोबारा से बी सिंह सर से कि वो हमारे साथ मंच पर आए। स्वामी गुप्ता सर, सौरभ पांडे सर from the industrial to please join us on stage for the next group, which is group 6. I repeat once again, I request B. Singh sir, Swami Gupta sir and Saurabh Pandey sir, Industrial Engineering. B. Singh sir, can we have you on stage please? I think sir is busy with the students. So he's right here. So ladies and gentlemen, we are starting the next segment, group 6. I would like to thank Swami Gupta sir and Saurabh Pandey sir. I would request Iftikhar Ahmed sir, Amit Jain sir and KM Tripathi sir to please join us on stage. And B Singh sir तो constant है हमारे साथ मंच पर। Ladies and gentlemen, as I mentioned, we live in this incredible country called India, also known as Bharat, also known as Hindustan. भारत के अन्य अन्य कोनों में अन्य अन्य कल्चर्स अपनाए जाते हैं, अन्य वेशभूषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. In short, we are a country, we are a diverse country, we are a diverse land. इस मंच पर दूसरी परफॉर्मेंस इस फेलिसिटेशन सेरेमनी की we present to you the colors of India. जहां पे आप देखेंगे
from Kashmir to Kanyakumari, from Punjab to Haryana, different rich cultures of India through their folk dances. तो आइए सभी एक साथ बुलाते हैं मंच पर अगली परफॉर्मेंस को तालियों के साथ presenting to you the colors of India. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सभी हमारा साथ दें, हमारे परफॉर्मर्स का साथ दें। परफॉर्मेंस से पहले थोड़ी सी तालियां हो जाएं, परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारी तालियां। Come on everybody, can you put your hands together? डेफिनेटली पूरा इंडिया दिखा दिया और हम सबकी एनर्जी अब चार्ज अप हो गई है. सो मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम profoundly delighted to invite a tenacious and benevolent personality on the stage to inspire these young and dynamic officers on this propitious occasion. Like everyone who is present over here, even I believe that this felicitation ceremony is fragmented without her encouraging words and elegant demeanor. और कुछ लाइन्स उनके लिए हैं. हारे हुए में हिम्मत भर दे, प्रेरणा की आशा हो आप, शब्दों की मोहताज नहीं, चेतना की भाषा हो आप, संस्कृति से अटूट नाता है आपका, संस्कृति से अटूट नाता है आपका, शिक्षा की अभिलाषा हो आप, शिक्षा की अभिलाषा हो आप, हारे हुए में हिम्मत भर दे, प्रेरणा की वो आशा हो आप. Ladies and gentlemen, please put your hands together to the powerhouse of Made Easy, Mrs. Jyoti Singh, Managing Director, Made Easy, Manit and Next Eyes Group. इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका. थैंक यू अरुण, इतने सुंदर शब्दों के लिए और इतनी मोटिवेशनल लाइंस जो आपने कही, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए. ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए. ये कर दिखाया है हमारे बच्चों ने, हमारे प्रिय टॉप रैंकर्स ने. नमस्कार, आज हम सभी ESE 2023 और गेट 2024 के सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं. मैं इस गरिमामयी समारोह में उपस्थित आप सभी महानुभावों का सहृदय स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. मैं आप सभी IAS टॉप रैंकर्स जो अब हमारे देश के सक्रिय भविष्य होंगे और सभी गेट टॉपर्स जो अब अपनी हायर स्टडीज के लिए आगे अग्रसर होंगे, उनका स्वागत और बधाइयां देते हुए खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ. ऐसा लगता है कि ये सफलता मेरी खुद की अपनी है, ऐसा अंदर से मुझे महसूस होता है. सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चों की सफलता के लिए दिन रात कामना करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जब से वो बच्चा पैदा होता है तब से वो सोचते हैं कि वो बच्चा मेरा एक ना एक दिन किसी
बुलंदी पर पहुंचेगा, उन सभी पेरेंट्स का मैं सहृदय स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनको दिल से नमस्कार करती हूँ। हमारे सभी फैकल्टीज और उनके परिजनों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उनकी सहायता के बिना पढ़ाना या कोई भी काम करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आप सभी ने जो भी सफलता अर्जित की है उसमें शुरू से ही आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, फोकस, ऑनेस्टी ये सभी शामिल रहा है और आगे भविष्य में भी यही सारी चीजें हैं जो काम आएंगी आपको। ये सभी टॉपर स्टॉप के दौरान हमें पता चलता है कि उन्होंने किस तरह की मेहनत की और किस तरह से उन्होंने काम किया। हमारे कुछ टॉपर्स ऐसे हैं, खासकर जिसमें मैंने मनोहर रेड्डी जी का, मैंने जो 5th रैंक है ENT के हैं, उनका मैंने एक टॉपर स्टॉप के दौरान मैंने सुना कि उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को दिया। ये देख के ही मेरा दिल एकदम, जब मैंने सुना, पहली लाइन उनकी यही थी कि मैं श्रेय अपने पेरेंट्स को देता हूं, मैं काफी भावुक हुई। मैं आज उनकी इस खुशी का, इस गौरव का मैं अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि और उनके जो पेरेंट्स हैं वो फार्मर हैं, ये एक खास बात है। और इसको मैं इसलिए भी कोरिलेट कर पाई क्योंकि हमारे CMD मिस्टर बी सिंह, उनके पेरेंट्स भी फार्मर हैं और उन्होंने शुरू से ही बहुत ज्यादा मेहनत की है। शायद आज तक इस मंच पर हमने जितना भी कहा है या सुना है या उन्होंने बताया है, उससे भी कहीं ज्यादा मेहनत और परिश्रम किया है। उन्होंने खेतों में काम किया है। जब वो कॉलेज से आते थे, अपने घर आते थे, अपने होम टाउन में आते थे, और अगर फसल की कटाई का काम होता था तो वो उस कटाई में भी अपना सहयोग प्रदान करते थे। इसलिए मुझे उनके पेरेंट्स का और उनकी खुशी का अंदाज का ठिकाना नहीं रहा। उनका पेरेंट्स का, मिस्टर सिंह के पेरेंट्स का हमेशा यही वक्तव्य होता है कि हमारी जिंदगी सफल हुई, हम तुम्हारी वजह से ही खुश हैं और ये खुशी, ये आनंद ही हमारी जिंदगी का आधार है, यानी कि हमें जीने की प्रेरणा मिलती है। वो इससे कहते हैं, वो अभी 90s की एज में है, लेकिन उनको जो जीने की कामना होती है वो सिर्फ इस सफलता और रिस्पेक्ट की वजह से जो हम लोग दे पाते हैं, असर दे पाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो पहली सफलता तो आपने अर्जित की है, लेकिन दूसरी सफलता यही है कि पेरेंट्स का वरद हस्त हम सभी बच्चों पर हमेशा ताउम्र बना रहे। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम बच्चों की ही है। जो मेडीजी के टॉप हैं, इनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, यानी कि सभी को एक उच्च आदर्श बनना है। सभी कहते हैं कि जो हमारे पुराने टॉपर स्टॉक हैं और जिन बच्चों ने भी यहाँ पर सफलता अर्जित की, हम उनको सुनकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम उनकी सीख को आगे लेके बढ़ते, तो हमें आगे भी हमें आदर्श बनना है। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में ही यूज होता है, उसका जीवन सफल है। तो हमें यही करना है कि हमें अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, मीठी वाणी बोलनी है और परिश्रम करते रहना है। ये तो अभी शुरुआत है, ये आप सभी के लिए है जो उन्होंने सफलता अर्जित की है। ये तो अभी शुरुआत है, सफर अभी बाकी है। तेरे कंधों पर आई अब एक नई जिम्मेदारी है। अब तेरे पास वो शक्ति है, वो विद्या है। तू अर्जुन बन, अहिल्या बन, लक्ष्मीबाई बन, खुद में राम को देख, नानक देख, सीता को देख, कृष्ण को देख। सत्य और इंसाफ की तराजू का इस्तेमाल हर वक्त कर। तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। पूरा मेडीजी आपके साथ है। सर ने भी कहा हम सब आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। मझधार में नहीं, हम तुझे छोड़ेंगे। जहां भी जब भी तू नजर दौड़ाएगा,
अपने साथ ही तू हम सबको पाएगा। अंत में मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, मिस्टर सिंह ने भी कहा आपसे कि समाज से हम हमेशा कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। अब ये हमारी बारी है कि हम उस समाज को कुछ देकर जाए, कुछ वापस करें। इस प्रक्रिया में हम सभी को पेड़ लगाने हैं। अपने कुछ कुछ विशेष अवसरों पर अपनी मनपसंद का एक पेड़, चाहे वो आम का हो, अमरूद का हो या बरगद का हो, या जो भी आपको बहुत पसंद है, आप उस पेड़ को लगाएं, बड़ा होते हुए देखें और यकीन मानिए कि आपको जो आनंद आएगा वो अन्य सभी आनंद से ऊपर ही होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लोकक्षेम मंत्र संपूर्ण विश्व का कल्याण मंत्र है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम दूंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे माँ आदिशक्ति, हम सभी को ऐसा वर दे, ऐसा वरदान दे, ऐसा आशीर्वाद दे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जब भी मैम मंच पर आती हैं या किसी रूम में एंटर करती हैं, एक जो रूम है ना एकदम फ्रेश हो जाता है उनके ऑरा के साथ, उनकी वाइब के साथ, उनकी प्रेजेंस के साथ। वैसे ही आपने मंच को भी इतना इनलाइटन कर दिया अपने वर्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच मैम। Next up, we will move on to our Group A to do the honors. I will once again request B. Singh sir, Ram Tirath sir and Sagar Dodeja sir to please join us on stage. मंच पर बुलाना चाहूंगी आर चीफ गेस्ट टुडे श्री B.S. बस्सी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर, इट विल बी आवर ऑनर फॉर अस टू हैव यू ऑन स्टेज। और मैंने कहा जोरदार तालियों के साथ देने से जो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, शुक्रिया मैडम ज्योति सिंह जी, मिस्टर B. सिंह, मेरे जो प्यारे बच्चे बैठे हैं, उनके जो माता पिता या उनके जो बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं, और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो सफलता हासिल की है, ये कोई आसान नहीं है। कि मैं खुद इस प्रोसेस से निकल के गया हूँ, फिर बाद में मुझे UPSC में बहुत क्लोजली इसको देखने का मौका मिला। ये आप यहाँ पे बैठे हैं, ये आपकी मेहनत का फल है कि आप यहाँ बैठे हैं। मैं कई बार जब मेरे से बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, मैं उन्हें ये कहा करता था कि जो इंटरव्यू बोर्ड होती है, उसके दिल में आपके लिए एक बहुत रिस्पेक्ट होती है।
उन्हें पता है कि आपने वो जो कुर्सी इंटरव्यू बोर्ड के सामने वाली है वो आपने हासिल की अपनी मेहनत के दम पे, अपनी ब्रिलियंस के दम पे। उस सीट को जो बहुत रईस आदमी है वो भी हासिल नहीं कर सकता, वो आपने हासिल की है। और आपने हासिल ही नहीं की वो सीट, आप यहाँ पे आए, आपने सफलता प्राप्त की और उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके अलावा मेडी जी को, मिस्टर बी सिंह को, मैडम ज्योति सिंह जी को और उनके जो साथ में साथी हैं, जो टीचर्स हैं, उन सबको बधाई देता हूँ कि आप सबकी मेहनत के कारण इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा पर एक दो बातें जरूर कहूँगा। जो आप अब सरकार में कदम रखोगे, आप एक बहुत ही अच्छे समय पे अपना कदम सरकार में रख रहे हैं। एक जो अमृत काल जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, 2047 में हम अपने स्वतंत्रता के 100 ईयर्स पूरे करेंगे। जो सिचुएशन 1947 में थी, आज वो हालात बदल चुके हैं। पहले हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में गिने जाते थे और हम जो है विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मैं किसी एक IFS ऑफिसर से बात कर रहा था, मैंने कहा यार आपको तो थोड़ी परेशानियां होती हैं। कहते नहीं, अब बिल्कुल परेशानी नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो मेरे साथ का था, 77 बैच का। उसने कहा जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी तब हम जब विदेश में किसी से समय मांगते थे कि आपसे हम मिलना चाहते हैं, खासतौर पे जो वेस्टर्न नेशन थे, तो वो हमें समय नहीं दिया करते थे। इवन जो अफ्रीकन कंट्रीज थी वहां पे भी कोई हमसे बात करके ज़्यादा राजी नहीं होता था। तो अब हम अगर किसी को कहते हैं, खास तौर पर टॉकिंग अबाउट द अफ्रीकन कंट्रीज, इवन वहां के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर से भी हम अगर समय मांगते हैं तो हमें एकदम समय दे दिया जाता है, कि उन्हें पता है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र का प्रतिनिधि आपसे समय मांग रहा है। तो आप उस समय में आप आ रहे हैं जब देश एक नई दिशा, नई तरक्की की तरफ अग्रसर है और आप उसके भागीदार बनेंगे। आप अपने कंधों के ऊपर में 140 करोड़ लोगों के भाग्य को लेके चलेंगे। तो मैं उसके लिए आप सबको एक गुजारिश करूंगा कि अपनी पूरी जो आपने तन मन यहां तक पहुंचने में लगाया है, वही तन मन आप 140 करोड़ लोगों की सेवा में लगाएं, ताकि जिस मुकाम पे आज हम पहुंचे हैं, जब आप 2047 में, आप सब होंगे 2047 में, और आप सब महत्वपूर्ण पोजीशंस में होंगे जहां पे आप देश के भाग्य के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश के लोगों के कल्याण के लिए डिसीजंस ले रहे होंगे। तो उस समय आपको एक अपने दिल में तसल्ली महसूस हो कि आपने पिछले 23 साल में कुछ ऐसा किया जिससे हम अब जो दुनिया की महाशक्तियों में सबसे अव्वल महाशक्ति बन चुके हैं। भारत का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास है। हम विश्व के मार्गदर्शक होते थे, बीच में हालात के कारण, और फिर 1947 में जैसा आपको पता है 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के कारण हम अपनी गौरव को खो चुके थे। अब वो वापस आया है और आप उसमें अब भागीदार बनने वाले हैं।
तो इसको आप, इस अपॉर्चुनिटी को आप बेकार ना जाने दें और आप देश को एक नए आयाम में ले जाएं। 23 साल तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों की किसी की नौकरी 35 साल होगी, किसी की 38 साल होगी, किसी की 36 साल होगी, ताकि जब आप आने वाली पीढ़ियों के लिए देश छोड़ के जाएं तो जो हम पढ़ा करते थे कि देश का एक स्वर्ण काल हुआ करता था, तो वो फिर से जब आप अपने मिड करियर में हो या करियर के आखिर में हो, तो देश का स्वर्ण काल आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएं। इस सब के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जो रैंक होल्ड, जो टॉपर्स हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, जो पीछे हैं उनको भी मुबारकबाद उतनी ही देता हूं, क्योंकि चाहे पहले और आखिरी में ज्यादा फर्क नहीं होता। थोड़ा सा एक क्वेश्चन का फर्क पड़ जाता है या इंटरव्यू के अंदर में कुछ इंप्रेशन का फर्क पड़ जाता है, इससे ज्यादा फर्क आप में नहीं है। इसी प्रकार से जो गेट वाले हैं, तो मैं देखा करता था खासतौर पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जितने गेट के अच्छे रैंक होल्डर्स होते थे, इनवेरिएबली दे आल्सो यूज्ड टू बी अमंग द टॉपर्स ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड आल्सो इन द सिविल सर्विसेज। तो सबको मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, for your wishes and guidance, and thank you always for being with us. And they say that some people wish it happens, some people hope that it will happen someday, but the real winners are those people who make things happen. And you guys are the real champions who have been extending their boundaries all over. A big congratulations to all our winners once again. With the same energy, I would like to call up here on stage Mr. Ashish Kumar, Mr. Bal Mukund sir, Saurabh Pandey sir, and D. Singh sir. Can I request all four of you to please join us on stage? Thank you. I would request K.L. Babu sir, Manish Kumar sir. I repeat, K.L. Babu sir and Manish Kumar sir.
to please join us on stage. मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दोबारा से, दरख्वास्त करूंगी केवल बाबू सर से, मनीष कुमार सर से कि वो ग्रुप 10 के लिए मंच पर आ जाए। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभी लोगों का। मैंने एक शब्द आपसे पहले कहा था कि आपका सेकेंड होम है, उस सेकेंड होम का आप एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाना चाहता हूं। यह है कुमार लाल बाबू, ये मेरे पहले बैच के स्टूडेंट भी हैं, मेडी जी के पहले बैच के स्टूडेंट हैं। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में इनका सिलेक्शन हुआ, सर्विस में है। और सबसे खुशी की बात अभी बाकी है, इनकी बिटिया प्रीति कुमारी पिछले साल सिविल सर्विसेज में आईपीएस बनी 130 रैंक में, और वो नेक्स्ट आईएएस से। तो ये मेडीजी में रहे, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में गए, उसके बाद फिर हमारे साथ इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए और टीचिंग के लिए भी जुड़े हुए हैं। और इनकी डॉटर ने सिविल सर्विसेज में 130 रैंक आईपीएस बनी है, प्रीति कुमारी। जस्ट सर ने सब कुछ कह दिया है, मुझे कहने का कुछ नहीं है। जस्ट आई वांट टू टेल कि मैं जो कुछ भी हूं सर के आशीर्वाद से हूं। और ये भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, मनीष कुमार, अभी बिहार इंजीनियरिंग सर्विस में जॉब कर रहे हैं, और मेडी जी के कुछ क्लासेस टीचिंग भी इन्होंने की है। तो ये भी मेडी जी के मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। अब वॉल्यूम दिखा रहा है कि मेडी जी का वॉल्यूम कैसा होता है। Thanks sir for motivating all of us, and we are heading to group 11. And to do the honors, I will once again request B. sir to step back on stage. विजय बाबा सर, विनय त्रिपाठी सर, मैं दरख्वास्त करूंगी आप हमारे साथ मंच पर जुड़े। विनय त्रिपाठी सर, विजय बाबा सर।
सामने मिक्सचर ऑफ पेट्रियोटिक एंड सेमी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस में आप हमारे परफॉर्मर्स को देखेंगे बहुत ही खूबसूरत से कॉस्ट्यूम्स के साथ, बहुत ही खूबसूरत से प्रॉप्स के साथ, बहुत ही खूबसूरत से एक्सप्रेशंस के साथ। तो आइए देखते हैं अगली परफॉर्मेंस, एंजॉय करते हैं तालियों के साथ, सीटियों के साथ। अपनी अपनी सीट्स पर थोड़ी सी तालियां हो जाए तो मजा आ जाएगा। थैंक यू।
एक बार दोबारा से थोड़ा सा डोज ऑफ एंटरटेनमेंट आप सभी के सामने, प्रेजेंटिंग अ रेट्रो थीम डांस परफॉर्मेंस। तो प्लीज हमारे जितने भी सभी यहाँ पर हमारी ऑडियंसेस में प्रेजेंट है, मौजूद है, प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। लेट्स गेट आवर नेक्स्ट परफॉर्मर्स अप हियर ऑन स्टेज presenting retro dance performance. Let's take you to the past where we are going to have a blast. We have with us retro dance performance. एक बार दोबारा से आई विल इनवाइट डी के अरोड़ा सर, सुनील तिवारी सर एंड बी सिंह सर। D.K. Arora sir, Sunil Tiwari sir, can we have you on stage sir to present the awards?
before we call the staff for the group photograph and then whatever the proceedings are, with this we come to the closure of today's event. और कहते हैं शुरुआत भी उतनी एनर्जी के साथ होनी चाहिए और एंडिंग भी उतनी एनर्जी के साथ होनी चाहिए. Now to end this amazing felicitation ceremony, जहाँ पे आप सभी आए हैं इतनी दूर दूर से सफर तय करके. This brings us to the last performance of this day, of this evening. With this, we come to the end of the felicitation ceremony for ASC 23 and Gate 24. But of course, I think it's going to be incomplete if I don't invite the faculty members along with their spouses up here on stage. Can I take a moment now to invite all our faculty members to join us on stage? Because you are the ones who prepare our students for the most prestigious examinations ever. So let's take a moment to get all of you up here on stage.